Good evening, ladies and gentlemen. How are you all doing today? Sunday evening है. Hope you all had a great weekend. आने वाले हफ्ते की तैयारी करनी है. Markets are quite volatile. Welcome to the weekly mastermind show of Ask Abhishek Raj. I'll gear you up. I'll help you plan what exactly you need to be looking at. किन चीजों पे ध्यान देना है इस हफ्ते, किन नंबर्स पे ध्यान देना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए मार्केट्स के लिए ताकि आप पैसे बचा सकें और पैसे बना भी सकें. So having said that, there are many things happening right now in the markets. जैसा कि आप सबने देखा होगा, US markets are doing well, European markets are doing well, but Indian markets are underperforming all the other major indices. अभी से कुछ महीनों पहले हम लोग outperform कर रहे थे, but अभी underperform कर रहे हैं. Now the problem is जो Asian पूरी economy है, like India, China and other nations too. So a lot of the global supply chain depends upon the Asian economy. We are the biggest consumers, you can say. We are the biggest second largest population. India दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा population और सबसे बड़ा खुला वैश्विक बाजार है ये. तो कुल मिलाकर के the impact will be there on all across global markets as well in case things deepen out. और थोड़ा मार्केट में जिटर्स हैं, कॉशंस हैं, कोविड को लेकर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अभी रिजल्ट का भी महीना चल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आ रहे हैं. जैसे विप्रो का रिजल्ट आया था, 7-8% ऊपर, 10% ऊपर चला गया. वी हैड रिजल्ट्स ऑफ आईटीज एंड सम बैंक्स टू इस वीकेंड पे. आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट आया, बट जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था कि like rather though 2 weeks back when we had result of HDFC Bank, the stock didn't react accordingly. Now all I'm trying to say is under this scenario, जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो we tend to get confused कि what exactly we have to follow, कैसे perspective, कैसे trade करें. तो ट्रेड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है. Look at the charts. Why? Because charts are the language of the market. The best part of chart is you don't predict, you try and read what's happening and you write the rally. Very simple. And you get, chart reading is just like using a compass in a desert or sea. See, this is how it happens. Whenever we are swimming in a swimming pool, maybe वी नो, या फिर हम रेस ट्रैक पे जब दौड़ रहे होते हैं तो पता है यहाँ से एंड होना है, यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से एंड होना है. 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर्स का रेस है. एंड वी नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट. वी कैन गो डायरेक्टली, वी कैन प्लॉट द डायरेक्शन, वी कैन गो द डायरेक्शन, वी कैन अंडरस्टैंड व्हिच डायरेक्शन टू गो. बट व्हेन यू आर लेफ्ट इन ओपन सी, you have water all around yourself. There is nothing that you can find which direction to move on. Similarly in desert as well. So charts and numbers will help you. They will work like a compass. They'll help you find your direction, which direction to go on, what exactly should be your action point. So having said that, let me take you back to my screen and let's see what charts we have, how our approach should be in the markets. So let me share my screen, just a second. Okay, here we go. Let me bring up my slideshow. ओके, 26 से 30 का हफ्ता है जिसमें हमें देखना है कि मार्केट्स में क्या चल रहा है. तो पहली चीज, ये निफ्टी का चार्ट है. दोनों वीकली चार्ट्स हैं, लेफ्ट और राइट पे. एक कैंडलस्टिक चार्ट है, एक लाइन चार्ट है. लाइन चार्ट की खूबी ये होती है कि वो सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट्स के बेसिस पे इसके लेवल्स बनते हैं. तो इट गिव्स यू बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो what is the trend, higher highs, higher lows, and reaction points are more clear in candlestick chart. They reflect more of a trading psychology of the overall market participants. So सबसे पहले राइट वाला अगर देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, एक फॉलिंग ट्रेंड चैनल है जिसके बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा. अगर इस ट्रेंड चैनल के ऊपर का लेवल देखेंगे तो कहीं 14,500 से 15,000 के बीच का कुछ निकल के आएगा. डाउन साइड में ये ट्रेंड चैनल 14,000 तक टेस्ट करता है. एंड इफ यू लुक एट इट केयरफुली, ये जो हफ्ता था आपका बजट के बाद वाला, द बिगेस्ट ग्रीन वीक, जब भी कोई बड़ी कैंडल होती है तो उसका मिड एरिया के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए. नाउ मिड के नीचे आप ऑलरेडी आ चुके हो और ये जो आपका स्विंग हाई था ये ऑलरेडी टूट चुका है. ठीक है. सो टेक्निकली दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इंपॉर्टेंट. 14,000 से 15,000 का एक ट्रेडिंग रेंज आप मान करके चल सकते हो पूरे हफ्ते के लिए. सो ट्रेंड चैनल अगर आपका काफी ब्रॉड है, अगर आपका पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग रेंज है काफी ब्रॉड है, इट सिंपली मीन्स कि मार्केट्स आर गोइंग टू बी वोलाटाइल
डोंट एक्सपेक्ट कंप्लीट वन साइड मूवमेंट, इट कुड बी चॉपी, और किसी भी साइड का जो डायरेक्शनल मूव होगा इट कैन बी क्वाइट स्टीप। दूसरा, अगर हम लाइन चार्ट्स को थोड़ा सा स्टडी करें तो एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर से भी नीचे आ रहा है, तो एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन हो रहा था। दिस ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन हैज बीन ब्रोकन ऑन द डाउन साइड। प्रीवियस स्विंग हाई 14,455 भी टूट चुका है, सो दैट्स वन ऑफ द वेरी की इंपॉर्टेंट थिंग्स. Now we could be retracing this entire big up rally that started from 13,700. So let us see what are the numbers that we need to keep an eye on. अभी ध्यान से देखते हैं अगर डेली चार्ट पे, लाइन चार्ट को, तो क्या दिख रहा है कि 100 डीएमए के नीचे आने के बाद व्हेन मार्केट्स वेंट अप इट टुक रेजिस्टेंस ऑन 100 डीएमए. 2050 का डेथ क्रॉस तो पहले से ही चल रहा. राइट हैंड साइड में जो मैंने कैंडलस्टिक चार्ट बनाए थे, बहुत सारे एरोज हैं, इनको ध्यान से देखिए आप, हुआ क्या है. ये जो आपका लेवल था 14,300 का, ये बड़ी वाली जो सब बजट के बाद का जो पहला गैप अप, पहला जो बड़ा कैंडल बना था, और उसके बाद गैप अप के साथ मार्केट्स ऊपर गई थी, तो इस कैंडल के टॉप पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ जो बुल्स आए थे, यहाँ कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलने की तैयारी हो रही, तैयार दिखता सा लग रहा है कि शायद सपोर्ट मिल रहा हो, और ये लेवल कई बार रेजिस्ट हो चुका है. नाउ द पॉइंट इज कि जो लेवल जितना स्ट्रांग होता है वो उतना मुश्किल से टूटता है, और जब वो टूटता है तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग टूटता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. लुक एट द फर्स्ट एरो, ब्लैक एरो, नीचे आया, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग हुआ, नेक्स्ट गैप अप, मार्केट वेंट अप टू 15,050 levels, then you started falling once again, you entered the same level, but फिर से उसके ऊपर की क्लोजिंग आती है. तीसरी बार यहाँ पे हैमर कैंडल बनता है नीचे आने के बाद, तो इसके नीचे 14,300 के नीचे देयर आर सीरियस अमाउंट ऑफ सप्लाई. ये ग्रीन वाली कैंडल पर भी, बड़ी रेड कैंडल में क्या हुआ, जैसे ये गैप डाउन खुला, उसके ऊपर जाते ही ये गैप पे रेजिस्टेंस मिल गया, एंड देन वी हैड नेक्स्ट डे, नीचे तो खुला मार्केट बट अगेन क्लोजिंग अबव इट. नेक्स्ट डे अगेन वी वेंट अबव इट, बट ऊपर से बड़ा विक बना है इस बार, और फाइनली जो हमारी सेटलमेंट आई है 14,333 के नीचे, 33 के आसपास बोले तो, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आप ट्रेड कर रहे हो, but it's an indecisive candle. So all I'm trying to say is कि this level has been tested many times. Most probably this will get broken. तो अगर मार्केट नीचे जाती है तो प्लीज बी कॉशियस. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने का, देखिए जो ओवरनाइट गैप्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं नॉर्मली ड्यू टू हेवी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज. So all the gaps are working as resistance. If you look at the charts, the first gap was here. जैसे ही गैप क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे गई, रिवर्सल आया, बट ये गैप नहीं भरा. सेम थिंग हैपेंड हियर, गैप तो था, रेजिस्टेंस वापस से गैप पे मिला, तो हम बार बार गैप पे रेजिस्ट कर रहे हैं. So there is one thing clear, on the upper side we have clear supply, so be very cautious on your long positions. You are any which ways trading below 100 DMA. 200 DMA is approximately 12,980, 13,000 के लमसम है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है. So things are not bullish for sure, and in short term you are bearish. You should be looking at but again normally क्या होता है जब भी multiple conflicting numbers होते हैं, data points होते हैं, जैसे global cues positive हैं, so there will be many bulls in the market looking at the global data, and there will be many bears in the market looking at the trend, and so many things. तो ऐसे situations में अक्सर हाँ काफी choppy markets आपको दिखते हैं. So two things you should be expecting. Overall bearishness रहेगा जब तक कि आपको कोई डिसेसिव अपसाइड नहीं मिल जाता है, कोई इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेज नहीं ऊपर की तरफ आप निकल जाते हो. 50 डीएमए के ऊपर एटलीस्ट तो निकलो फॉर सेइंग कि शॉर्ट टर्म यू आर बुलिश. शॉर्ट टर्म बुलिश होने के लिए 50 डीएमए इज अप्रॉक्सीमेटली 14,850. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑन द अपसाइड, जिसके बाद ही हमें क्लियर कट बाय सिग्नल्स मिलेंगे, और बार बार हमें ऊपर से सप्लाई आता रहेगा. अभी चीजें थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं, जैसे इंडिया में लॉकडाउन और थोड़े एक्सटेंड हुए हैं, दिल्ली में एक्सटेंड हुआ है, एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड. सो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन. Choppy market, bearish market is what you should be looking at. On Nifty, I'll give you the support and resistance levels. In case of downside, you have the support that you could be looking at is 14,000, 13,700, 13,140, 14,000, 12,400. That would be your support. ऊपर के साइड में जो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा, जो सबसे पहला रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, दैट वुड बी 14,455 फॉलोड बाय 14,700 followed by 15,000. that would be your resistance. and on immediate basis, कल के ही बेसिस पे जो पहला आपको लेवल इंपॉर्टेंट काम करेगा वो है 14,350 के. अगर आप ऊपर रहते हो
तो थोड़ा सा ठीक है मार्केट, और उसके ऊपर जाते ही 14,520 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अपसाइड में यू हैव टू बी लुकिंग एट वेरी क्लियर, कम से कम एक गैप फिल हो जाए। तो मैं पर्सनली 14,700 के ऊपर ही कुछ करना पसंद करूंगा, कम से कम पहला गैप, एक गैप तो फिल हो चढ़ते हुए में। एनी विच वेज, सो दीस आर द नंबर दैट यू कुड बी लुकिंग एट। बैंक निफ्टी का भी मोर और लेस यही पर्सपेक्टिव है। बैंक निफ्टी इज कंपैरेटिवली वीकर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बैंक निफ्टी में देखेंगे, अगर आप ये वाली लाल लाइन देखो 32,715 के आसपास, so दिस वाज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई। एक कप पैटर्न का ब्रेकआउट मिला था। नाउ दिस नेक लाइन डिड नॉट वर्क एज सपोर्ट टेक्निकली। अगर ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग था तो व्हाट शुड हैव हैपेंड इज ऑन द फॉल यू शुड हैव टेकन सम सपोर्ट हियर। नाउ वी आर इनसाइड द कप। इनसाइड द कप तो एक हैंडल फॉर्मेशन हो सकता है अगर मार्केट ऊपर जाती है। तो नीचे आपको दो इनडिसाइसिव कैंडल मिल चुके हैं। जो ट्रेंड चैनल है, अगेन अ स्टीप एंड फॉलिंग ट्रेंड चैनल, ये जोर से गिर रहा है। जो बैंक निफ्टी का प्रीवियस वीक का क्लोजिंग है अप्रोक्सीमेटली 31,440 के आसपास, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइस। यहाँ पे पहले भी हम रेजिस्ट कर चुके हैं, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। बाकी विल कम टू नो ऑन मंडे, कल पता चलेगा। तो एक जो ट्रेडिंग रेंज बैंक निफ्टी का ट्रेंड चैनल में आप देख सकते हो, वो 32,000 से लेकर के 30,000 की रेंज में कहीं ना कहीं होता है। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी अप्रोचिंग। और एक वीकली ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है 29,700 800 के आसपास। सो देखते हैं वेयर इट वर्क्स आउट। फॉर नाउ यू आर बेयरिश जस्ट लाइक निफ्टी। रेस्ट, लेट्स टेक अ लुक मोर ऑन नंबर्स। तो जैसा मैंने बताया, ये एक ट्रेंड चैनल है आपका। एक तो इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा 30,800 के आसपास। कोई गिरता है तो इसका जहां से शुरुआत हुआ था इस रैली का 29,916 के आस 29,616 के आसपास, इधर कहीं आपको सपोर्ट मिल सकता है। छोटा सा एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन है डेली चार्ट पे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यू कैन प्ले विथ ऑप्शंस लॉन्ग। कॉल साइड में आप ट्रेड कर सकते हो, एंड दैट वुड बी अबव 32,200। बट अगेन आई एम नॉट वेरी मच excited about any long position unless and until bank nifty goes above 50 days moving average, or we see a golden cross between 20 and 50 DMA at least. Tab tak I am not that much more excited about long position. So the numbers that you should be looking at is, in case we go down, the first support that you could be looking at is 31,400, followed by 29,764, 29,100, and then 26,700 would be your support in case markets continue to fall. In case markets continue to go up, the first resistance you could be looking at is 31,700, 32,000 तो एक important level होएगा ही, साइकोलॉजिकल लेवल है। 32,200 एक रेजिस्टेंस होगा, 32,700 रेजिस्टेंस होगा, 32,900 रेजिस्टेंस होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट का जो रिवर्सल आया है वो है 30,400 के आसपास। तो कहीं ना कहीं यू कैन से द साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ राउंड फिगर 30,000 इज वर्किंग. So let us see if that's defended. In case we break that, probably we could be headed up for बिगर करेक्शन, आई वुड से। अगर ये सपोर्ट लेवल आपका, ये जो एरिया था कंसोलिडेशन के बाद अप मूव का, ये अगर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट चार्ट पे तो 25,000 के आसपास कहीं जो प्रीवियस हाई था, मतलब बैंक निफ्टी ने जो 25,200 का हाई बना करके करेक्शन दिया था 20,000 तक बैक इन द मंथ ऑफ अगस्त, शायद कहीं आप इस रेंज में जा सकते हो। सो लेट अस सी, देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट। आई वुड प्रेफर टू सिट ऑन द साइडलाइन। इट इज सेड, जैसा हमने हमेशा से कहा है कि we always follow a top down approach. First market should be bullish or bearish, and then we look for the sectors accordance with the same view, then we look for the stocks with the same view. That's a top down approach. So अगर मार्केट का ही व्यू नेगेटिव है या नॉट पॉजिटिव है तो we would probably not have any long stocks as well. तो अभी हमारे पास कोई लॉन्ग पोजीशंस नहीं है, अभी हम कोई भी नए स्टॉक्स आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम मोर और लेस सेक्टोरियल चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टॉक्स तो वही हैं। ऑटो के अंदर में टाटा मोटर्स हैज बीन माय फेवरेट इन टू व्हीलर्स, बजाज ऑटो इज फेवरेट इन फोर व्हीलर्स, इन कमर्शियल सेगमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा इज माय फेवरेट। बैंकिंग के अंदर कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लुक्स ग्रेट, एसबीआई बहुत ही अच्छा है। सो ये सारे स्टॉक्स हैं। फार्मा के अंदर में डॉक्टर रेड्डीज, डिविस लैब, सन फार्मा, औरो फार्मा, सिप्ला, ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं। मेटल्स के अंदर में हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील इज व्हाट वी कुड बी लुकिंग एट. सो मोर और लेस वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट सेक्टर्स आर डूइंग, so that in case whenever there is some sort of change or any kind of bullish actions on the upside, we could be looking forward to buy those stocks at the right time. ज्यादा स्टॉक्स डिस्कस नहीं करेंगे, रियल टाइम इन मार्केट सिनेरियोज एज वेल ड्यूरिंग द वीक आई विल बी सेंडिंग यू मोर अपडेट। तो हम बाकी के सेक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं कैसा चल रहा काम।
ऑटो के अंदर वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट टूट चुका है, आप 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहे हो, मल्टीपल डेथ क्रॉसेस हैं 20 डीएमए, 50 डीएमए एंड 20 एंड 100 डीएमए का। 100 डीएमए पे आपको रेजिस्टेंस मिला है, बट अगेन 20 वीक मूविंग एवरेज सपोर्ट पे हो, तो कहने का मतलब कंपैरेटिवली ऑटो इंडेक्स इज डूइंग बेटर देन निफ्टी और बैंक निफ्टी, दे आर ऑल बिलो 20 वीक मूविंग एवरेजेस, सो मोर और लेस नो ट्रेड, अवॉइड। Energy stocks, energy is also the same view. डेथ क्रॉस है 20-50 डीएमए पे, मल्टीपल फॉलिंग विंडोज हैं रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक निफ्टी। ये एक हो गया, एक ये हो गया। सो अनलेस अनटिल समथिंग, एक अच्छी चीज है कि 20 वीक मूविंग एवरेज की आप ऊपर हो, इंडिसाइसिव कैंडल है। अगर एक बार को थोड़ा सा कोई रिवर्सल आता है तो वी कैन लुक एट सम एनर्जी स्टॉक्स टू, इन केस देयर इज एन रिवर्सल। बट अगर डेली चार्ट को स्टडी करोगे ना, तो नीचे से 40 पे है तो 40 पे रेजिस्टेंस भी मिल सकता है। सो फॉर नाउ जस्ट अवॉइड एनर्जी। कंजम्पशन सेम साइडवेज व्यू है कंजम्पशन का, 42 के आसपास आरएसआई है, 52 पे वीकली आरएसआई है, एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है कंजम्पशन के अंदर। सो नो ट्रेड ऑन कंजम्पशंस टू। आईटी थोड़ा सा मतलब ट्रेंड वाइज तो बुलिश है, बट क्या है कि अब आप एक टॉपिंग फेज में जा रहे हो जहां पे रेड कैंडल्स हैव हायर वॉल्यूम्स एंड ग्रीन कैंडल्स हैव डिक्लाइनिंग वॉल्यूम्स। एक की रिवर्सल कैंडल बना है जहां पे नया ऑल टाइम हाई विद अ डीप रेड बेयरिश इनगल्फिंग बना करके, ऑलमोस्ट यू कैन से इट्स अ डार्क क्लाउड पैटर्न, एंड देन कॉन्फर्मेशन थोड़ा बाकी है, एक बार इसके नीचे जाए तो एक की रिवर्सल कैंडल बना हुआ है। 20 और 50 दोनों के नीचे आप ट्रेड कर रहे हो, 50 डीएमए के नीचे पहुंच चुके हो। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी कहां सपोर्ट मिलता है। तो अभी हम आईटी पे भी बुलिश नहीं हो सकते। आप देखो पिछले हफ्ते में ही आईटी का वीकली आरएसआई 58 पे चला गया है, यानी कि नाउ यू आर साइडवेज ऑन बोथ वीकली एंड डेली चार्ट्स इन आईटी एज वेल। Metals are the strongest sector of the entire market, but again a word of caution, टॉपिंग जैसा कुछ दिख रहा है, ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा कंजेशन मिल रहा है, नए हाइज बन नहीं पा रहे हैं, अपर लेवल पे इनडिसाइसिव कैंडल्स बन रही हैं। सो प्रोबेबली वी नीड टू वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ साइडवेज टू कंसोलिडेशन टू अ स्मॉल रिट्रेसमेंट और अ करेक्शन टू इनिशिएट न्यू लॉन्ग पोजीशंस। सो अवॉइड मेटल्स टू। फार्मा का भी यही सीन है, फार्मा में भी आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे जाते ही एक स्पिनिंग टॉप सा कैंडल बना है। अब दो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे नहीं है, सो कोई वरी करने वाली बात नहीं है। डेली चार्ट पे एक की रिवर्सल कैंडल बना है, नया हाई, नेगेटिव क्लोजिंग, इट्स अ काइंड ऑफ एनगल्फिंग कैंडल फॉलोड बाय स्पिनिंग टॉप। तो काफी इंडिसाइसिव और बेयरिश कैंडल बन रही है। ऊपर के साइड में थोड़ा सप्लाई है। अक्सर हाँ क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स होते हैं और जब मार्केट के बाकी सेक्टर्स पिट रहे होते हैं, तो अक्सर हाँ जो लोग होते हैं, देखो मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स होंगे, बुल्स और बेयर्स होंगे, सिंपल सीधी सी बात है। बेयर्स तो ऑलरेडी बेच रहे हैं। अब बुल्स का क्या है कि बाकी मान लो आपने चार सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है, ऑटो, बैंक, मेटल, फार्मा। बैंक और ऑटो में नुकसान चल रहा है आपका, मेटल और फार्मा जैसे ही अपर जाएगा, यू वुड ऑलवेज टेंड टू बी लाइक प्रोटेक्टिंग योर पोर्टफोलियो, प्रोटेक्टिंग योर प्रॉफिट, सेलिंग इट अप, so upside supply would be there, so that could be the reason why pharma is like showing indecisiveness on the top as well. So word of caution, just wait and watch. फ्राइडे का लो अगर टूटता है तो थोड़े आप नेगेटिव हो जाओगे। सो दैट्स अबाउट इट ऑन फार्मा। रियलिटी भी अवॉइड करना है। रियलिटी में एक कप पैटर्न बना था, 330 का ब्रेकआउट मिला था। अब जब तक वापस 330 के ऊपर नहीं जाता, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक हो जाएगा कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाएगा। फॉलिंग रेजिस्टेंस है 20-50 डीएमए और 20 और 100 डीएमए दोनों का ही डेथ क्रॉस इस पे बन चुका है। सो जस्ट अवॉइड। और आरएसआई डेली वैसे भी 34 पे चल रहा, तो इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव ऑन रियलिटी फॉर नाउ। That's about it for all these sectors. Hope I helped you with all the numbers. So more or less एक simple सीधा सा approach है। आप अभी थोड़ा bearish to choppy markets expect करें। That is how you should be protecting your portfolios. कोई भी अगर upside मिलता है and if you are already invested, probably you should be buying some put, do some protection, do some hedging. अभी market stable नहीं है. That's a clear cut view on the market. So having said all of these, you can always approach me to discuss any of the stock that you could be stuck on, any of your index positions that you could be stuck on. I would be more than happy to help you with all the answers.
Just let me stop the screen sharing. So जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास कोई भी पोजीशन में आप फंसे हुए हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो या इंडाइसेस में हो, जो भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मैंने शेयर करा, नंबर्स को फॉलो कीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए. एंड इफ यू वांट टू डिस्कस एनी ऑफ योर स्टॉक्स पोजीशन स्ट्रेटजीज, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. So with this note, stay safe, take all the precautions to protect yourself from coronavirus. And before we end up, let me share something important on coronavirus. I have seen people getting too much of panicked about it. So be patient, be calm, take precautions, अपनी health का ध्यान रखिए, and don't expect this to go away in some time. You know, जैसे अगर आप थोड़ा हिस्ट्री को स्टडी करोगे, पहले डेंगू, मलेरिया, प्लेग जैसे बड़े बड़े महामारी हुआ करती थी, पूरे गांव के गांव खत्म हो जाया करते थे. तो ऐसा नहीं है कि बीमारी कहीं चली जाती है, नहीं. इट्स जस्ट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी डेवलप द इम्यूनिटी, वी डेवलप वैक्सीनेशंस, वी डेवलप मेडिसिन, एंड that's how it becomes a normal part of life. For example, अभी डेंगू मलेरिया है, या प्लेग, ये सारी चीजें एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है. अगर हो जाता है किसी को, भी जस्ट विजिट डॉक्टर, इन सारी चीजों का टीका लग जाता है पहले ही, and we visit a doctor and we get treated. Similarly, it would happen with corona too, but you need to have patience for that. Wait कीजिए, हर टाइम लगेगा. So more or less, stay healthy, stay wealthy, stay safe. Wish you all happy trading. All the best. Have a good day ahead and a good week ahead. On this note, Abhishek Raj signing off.